Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great. I welcome you all to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all A and O level past papers solved by teachers and A-star students. So subscribe to our channel and share it with other Cambridge learners. Thank you. We're starting off with October-November 2019, P2 variant 23. As you all know, P2 is multiple choice. So let's start. Question number 1. What is the best apparatus to use to measure the thickness of a coin? अब जो एक coin की thickness होती है वो हमारे पास होती है basically millimeters में. तो हम देखेंगे कि कौन सा हमारे पास यहाँ पर apparatus best है for calculating millimeters. Number 1, a balance, incorrect. ये weight measure करता है. Ruler with a millimeter scale. हाँ ठीक है, use कर सकते हैं, so and so. Micrometer screw gauge. This will be the best option because pressure हमें measure करना नहीं है. बैलेंस से हमारा वेट मेजर होता है. इन दोनों से हमारे पास लेंथ या डिस्टेंस होती है. एंड माइक्रोमीटर आपको नज़र आ रहा है, माइक्रोमीटर लिखा हुआ है ना, मतलब बेस्ट तरीका होता है मिलीमीटर्स के लिए माइक्रोमीटर्स का. मिलीमीटर या उससे कम तो लाइक यू नो एनी वे अंडरनीथ अ सेंटीमीटर माइक्रोमीटर स्क्रू के सबसे बेस्ट होता है. आपसे रूलर से भी हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा है व्हाट इज़ द बेस्ट एपरेटस, तो ज़्यादा एक्यूरेसी आपको माइक्रोमीटर स्क्रू के से मिलेगी. Number 2, the graph shows the speed of an object varies with time. At which labeled time is the object decelerating? अब क्या कहते हैं, ये हमारे पास है speed time. Speed time का हमारा gradient किसको represent करता है? Gradient is equals to y upon x. तो speed upon time हमारा represent करता है acceleration. तो A और B में acceleration increase कर रही है. ए बी सी एक्सलेशन इंक्रीज करिए. यहाँ पर एक्सलेशन कांस्टेंट है, मतलब नो एक्सलेशन. यहाँ पर एक्सलेशन नेगेटिव में जा रही है, मतलब कि डीसेलरेशन. तो इस वजह से आंसर यहाँ पर होगा हमारे पास डी. डीसेलरेशन इज डी इज अ आंसर फॉर डीसेलरेशन. नंबर 3, अ कार ट्रैवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 kilometers per hour for 15 minutes. How far does the car travel in 15 minutes? Whether distance is equals to speed multiplied by time. तो speed हमारे पास है 60 kilometers per hour. तो time भी हम hour में ही लेंगे, तो हम करेंगे 15 minutes. अगर उसको हम hour में divide करते हैं तो हम 60 से divide करते हैं, तो hour बन जाता है 0.25 of an hour. तो अगर आप इसको multiply करें with 60, the answer you get is 15 kilometers. Answer is B. Number 4, which equation shows a relationship between W and which is the weight and mass of an object? आपको ये बात read जानी चाहिए कि W is equals to mg. Weight is equals to mass into g. जिस जगह का mass कभी भी change नहीं होता, but W change होता है हमेशा, because weight g पे depend करता है. mass हमेशा constant होता है. जहाँ पर भी gravitational field strength different होती है, g different होता है, तो W change हो जाता है. ठीक है. Number 5, a box of mass 2 kg is pulled across a horizontal floor by a force of 6 newtons. तो यहाँ पर 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है. The frictional force acting on the box is 1 newton. Opposite sides पे, क्योंकि frictional force हमेशा opposite side पे होती है 1 newton. What is the acceleration of the box? अब आपको यहाँ पर मास दिया हुआ है और आपको यहाँ पर resultant force दी जा रही है, तो आपको एक्सलेशन निकालना है. बहुत आसान है, F is equals to ma वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. पहले हम फोर्स निकालेंगे विच इज़ रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स ऑब्वियसली इस तरफ होगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा फोर्स है. एंड 1 यहाँ पर रिमूव होगा, यहाँ कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 5 न्यूटन्स. ठीक है, क्योंकि उस साइड पर अगर 1 है तो इस साइड पर 1 कम होगा, तो हमारे पास हो जाएगी 5 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स. अब एक्सेलरेशन हो जाएगा force upon mass, that is equals to 5 upon mass. कितना हमारे पास 2, तो इस वजह से हो जाएगा 2.5 बेसिकली. तो आंसर होगा हमारे पास B, 2.5 meters per second square second. Number 6, four hollow glass spheres P, Q, R and S each have a mass of 72 grams. Their volumes are given in the table. अगर सबका same mass है और सबकी different volumes है, मतलब कि सबकी डेंसिटी डिफरेंट होगी. ठीक है.
Which spheres sink in a liquid of density of 0.9 grams per centimeter cube? अब हम पहले सबकी डेंसिटी निकाल लेंगे, ठीक है. तो हम बेसिकली करेंगे 72 अपॉन वॉल्यूम पहले वाले की हमारे पास क्या है 55. तो 72 अपॉन 55 गिव्स अस 1. एक सेकेंड, let me just, yeah, it gives us 1.31, ठीक है. अगर हम करें 72 अपॉन 65 तो आंसर आ रहा है हमारे पास 1.11. अगर हम करें 75 अपॉन 75 तो आंसर आ रहा है 1.00. अगर हम करें 72 अपॉन 75 है नॉट 72, तो आंसर आ रहा है 0.96. अगर 72 अपॉन हम कर रहे हैं 85 तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.85. Which sphere sinks in a liquid of density 0. कौन सा स्फीयर सिंक करेंगे? तो जिसकी भी 0.9 से ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएंगे. अब ये तीनों की 0.9 से ज़्यादा है, P, Q and R. तो नंबर 6 का आंसर होगा A. Number 7. The diagram shows a uniform meter rule. The rule is pivoted at its midpoint. ये हमारा pivot नज़र आया midpoint पे 50 centimeter पे. A downward force of 4 Newton acts on the ruler at the 5 centimeter mark. The ruler is held by a string at the 30 centimeter marks and the ruler is in equilibrium. Equilibrium का मतलब होता है anti-clockwise moment is equals to clockwise moment. ठीक है, तब equilibrium में होता है मतलब कि still है. सही. तो अब हमें अपवर्ड फोर्स ढूंढनी है स्ट्रिंग पे कि अपवर्ड फोर्स क्या है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज. तो हम करेंगे 4 न्यूटन मल्टीप्लाई हो रहा है पिवट तक डिस्टेंस कितनी है 4 न्यूटन की 45 क्योंकि यहाँ 5 है और ये 50 है. सो बेसिकली 50 माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय कितनी डिस्टेंस है 50 से लेके 30 तक. ये हमारे पास हो जाएगी 20 बिकॉज 50 माइनस 30 अगेन हमें आंसर आ रहा है 20 इंटू 20. तो आंसर होगा 4. तो बेसिकली 4 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 20 गिव्स अस x. तो x का आंसर है हमारे पास 9 न्यूटन. सो आंसर है नंबर 7 का D. ठीक है. नंबर 8. A ship sails north at a speed of 20 meters per second. ये मैं कर देती हूँ. North 20 meters per second. ठीक है. A current in the water begins to move from east to west. East to west होता है इस तरफ because north, east, south, west. ठीक है. तो current इस तरफ हो रहा है. The speed of this current is 20 meters per second as well. What is the resultant velocity? Resultant velocity obviously इस तरफ होगी. Resultant velocity हम किस तरह निकालेंगे? 20 इस तरह होगी हमारे पास 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. ठीक है. तो हम ये करते हैं 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. आंसर आ रहा है हमारे पास 800. 800 को हम अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारे पास 28.2. सो द आंसर फॉर नंबर 8 will be C. ठीक है. Question number 9. The momentum of a body is changed by a force acting on it for a period of time. Which action increases the change in momentum? ठीक है. आपको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम हमें देता है. चेंज इन मोमेंटम गिव्स अस इम्पल्स. इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम. तो बेसिकली हम इस चीज़ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? ठीक है. इस टर्म को पहला ऑप्शन डबलिंग द फोर्स एंड हाविंग द टाइम. तो अगर हम कर दें 2 फोर्स टाइम अपॉन 2 तो वही चीज़ हो जाएगी ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा. डी डबलिंग द फोर्स फॉर द सेम टाइम. तो बेसिकली ये ए था, ये बी है. डबलिंग द फोर्स फॉर द सेम टाइम सो 2F. ठीक है. ये हमारे पास हाँ ये डबल हो रहा है. मोमेंटम का चेंज इंक्रीज कर रहा है. सी हैविंग बोथ द फोर्स एंड द टाइम. अगेन नो. हैविंग द फोर्स एंड डबलिंग द टाइम फिर वो यही वाला हो जाएगा. तो आंसर हमारा बी है. नंबर 10. A toy train P of mass 0.5 kg is traveling along a straight track
with the velocity of 3 meters per second. It collides with a stationary train of mass 1 kg. The two trains then stick together. Basically हमारे पास एक ट्रेन आ रही है इस तरफ, ठीक है, it is of mass 0.5 kg and it is traveling with a velocity of 3 meters per second. And ये collide करती है Q के साथ, ये P है, ये collide करती है Q के साथ जो है 1 kg, लेकिन इसकी कोई velocity नहीं है. What is the velocity of the combined trains? This is after collision. After ये collide करते हैं, जो दोनों ट्रेन हैं उनकी collide, after they collide उसकी दोनों ट्रेन की combined velocity क्या है. अब देखते हैं क्या हमारे पास options हैं यहाँ पर. A 1 meters per second in the same direction as P was traveling originally. पहले तो हम वो कर लेते हैं ना, momentum का कर लेते हैं. Momentum is equals to mass into velocity. So पहला हमारा mass क्या यहाँ पर 0.5 multiplied by 3 meters per second. और second हमारा mass क्या है 1 plus 0.5, तो हमारा आंसर 1.5, क्योंकि ये initial momentum है, इसका momentum तो 0 है, इसका momentum तो 0 है क्योंकि इसकी velocity नहीं है. तो initial momentum सिर्फ इसका होगा और final momentum इन दोनों का मिला के होगा into whatever this speed is. ठीक है, तो अगर आप इस तरह करें 0.5 multiplied by 3 divided by 1.5, तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 1. तो आंसर या तो फिर A है या B है. ठीक है, 1 meters per second in the same direction as P was traveling originally. That would be true. It would be weird अगर वो rebound करेगा और उसको rebound करने के लिए उसकी velocity काफ़ी high और mass काफ़ी less होना चाहिए. तो इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पर नंबर 10 का होगा A. Number 11. Brakes are used to slow down a car. Which form of energy is the most kinetic energy converted into as the car slows down? जब आप बचपन में आप बाइसिकल चला रहे हो एंड आपने ब्रेक मारा होगा, आपको फील होगा कि टायर बहुत गर्म हो जाता है. ठीक है, आवाज़ भी आती है, ठीक है, लेकिन गर्म वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. और क्योंकि फ्रिक्शन में आपको पता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एंड बेसिकली ब्रेक्स का फॉर्म क्या होता है, फ्रिक्शन को यूज़ करके गाड़ी को रोकना. तो फ्रिक्शन में कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, थर्मल. Next, number 12. A force of 25 newtons acts on an object. The work done by the force is 400 joules. How far does the object move in the direction of the force? अब आपको पता है कि आंसर हमारे पास work is equals to force into distance. तो हमारे पास distance is equals to work upon force. Work हमारे पास work basically energy होती है, ये work होता है, एक ही चीज़ होती है. So हमारे पास है 400 और force हमारे पास 25 newtons. तो आंसर यहाँ पर हमारे पास 400 upon 25, आंसर आ रहा है हमारे पास 16 meters. Okay, 1 second, let me just no 13. A car is moving along a straight horizontal road. The car has 1.6 megajoules of kinetic energy. So 1.6 into 10 to the power megajoules, so 10 to the power 6 megajoules of energy. The car accelerates for 20 seconds until the kinetic energy of the car increases to 2.5 megajoules. ठीक है, what is the minimum average power developed by the car engine for this acceleration? अब हमें पावर का पूछ रहा है, हमें चेंज इन वर्क या तो फिर चेंज इन एनर्जी दी हुई है, हमें टाइम भी दिया हुआ है. अब हमसे पूछा गया है कि पावर क्या है. पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क. सो P इज इक्वल टू W अपॉन T. तो हमारे पास चेंज इन वर्क क्या है, 2.5 माइनस 1.6 और टाइम हमारे पास है 20. तो अगर इसको हम कर लें तो आपका आंसर नंबर 13 का आ रहा है, हाँ 45 kilowatts आ रहा है यहाँ पर. Let me just reconfirm with this. 2.5 minus 1.6 upon 20. Yes, आपको उसमें मिलेगा 0.045 मिलेगा आपको. ठीक है, लेकिन हम इसको इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 10 to the power 6. तो आपके पास आ जाएगा ये 45 kilowatts. 10 to the power 6 क्यों,
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेगा जूल्स बता रहा है एनर्जी के, ठीक है। तो आंसर आएगा नंबर 13 का सी। Number 14. A drawing pin has a sharp point at one end and a flat surface at the other end. The pin is pushed into a wooden board. How do the pressure and the force at the sharp point compare with the pressure and the force on the flat surface? अगर आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ पर भी लगेगी और सेम फोर्स यहाँ पर भी लगेगी, लेकिन दोनों जगह पे प्रेशर अलग होगा, ठीक है। प्रेशर क्यों अलग होगा? बिकॉज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा? प्रेशर यहाँ पर कम लगेगा। ये एरिया है और ये प्रेशर। जहाँ पर एरिया कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। आपको नजर आ रहा है दोनों का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो नंबर 14 का आंसर क्या होगा? दोनों पे फोर्स क्या होगी? सेम होगी, लेकिन प्रेशर शार्प पॉइंट पे ग्रेटर होगा। तो आंसर यहाँ पर आ रहा है नंबर 14 का सी। नंबर 15. Which row compares the separation and the motion of the molecules of a hot gas with those of a cool liquid? ठीक है, प्रेशर सेम है, तो सेपरेशन गैस की ज़्यादा होगी या तो फिर लिक्विड की ज़्यादा होगी? गैस की ज़्यादा होगी पार्टिकल्स की तरफ, और मोशन फास्टर ऑब्वियसली गैस का ही होगा। तो आंसर नंबर 15 का है ए। ओके, नंबर 16. A fixed mass of gas has a volume of 25 centimeter cube. The pressure of the gas is 100 kilopascals. The volume of the gas is slowly decreased by 15 centimeter cube at constant temperature. What is the change in pressure of the gas? आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? क्योंकि according to Boyle's law, P1 V1 is equals to P2 V2. Because pressure is indirectly proportional to volume. तो इस वजह से हम यहाँ ले आए और ये हमारा कांस्टेंट है, तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम गिव्स अस अ कांस्टेंट, ठीक है। इस वजह से हमारे पास ये फार्मूला क्रिएट होता है। तो अगर आप हमारे पास इनिशियल प्रेशर था 100 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या थी हमारे पास 25, और फिर फाइनल हमारे पास वॉल्यूम है 15 मल्टीप्लाइड बाय व्हाटएवर द सेकंड प्रेशर। अगर आप ये फार्मूला इनपुट करें तो आपका आंसर आ रहा है अराउंड 150 किलो पास्कल्स। सो द आंसर फॉर नंबर 16 इज बी। Number 17. A liquid turns into a gas. This occurs only at one particular temperature, which is the boiling point. And the change happens throughout the liquid. What is this process called? Boiling. क्योंकि अगर एक ही टेम्परेचर हो रहा है और चेंज थ्रू आउट द लिक्विड हो रहा है तो बॉइलिंग। अगर एवेपोरेशन है ना, एवेपोरेशन सिर्फ टॉप लेयर पे होता है, और कंडेंसेशन होता है गैस को लिक्विड में कन्वर्जन, और फ्यूजन इज़ बेसिकली मेल्टिंग, मतलब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है। नंबर 18. The diagram shows a liquid and glass thermometer. When the temperature of the thermometer rises, the change this produced causes the liquid thread to move to the right. Why does this happen when the temperature of the liquid rises? Liquids expand more than gases. हम सारे ऑप्शंस को करते हैं, ठीक है। पहले तो ए, gases contract and liquids expand. That is not true. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो दोनों एक्सपैंड करते हैं, तो ये दोनों तो गलत है। सी, liquids expand more than gases. That is wrong again. Gases obviously ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे लिक्विड से। Liquids expand more than solids. That is correct. But इसका इससे बेसिकली कोई रिलेशनशिप नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बट यही करेक्ट स्टेटमेंट है सब में से, बाकी सब तो फिजिक्स के अगेंस्ट हैं, ठीक है। नंबर 19. A sealed metal box contains a fixed mass of air. The sides of the box are insulated. A scientist investigates the thermal conductivity of air. She measures how quickly thermal energy passes between the top and bottom of the box. Which row gives the correct procedure and the conclusion?
बेसिकली हमारे पास एक मेटल बॉक्स है, उसकी दोनों साइड्स इंसुलेट किए हुए हैं। तो अब उसको बताना है कि कितना क्विकली हमारे पास टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आप नीचे से दे रहे हो तो ऊपर पहुंच रहा है, या ऊपर से दे रहे हो तो नीचे पहुंच रहा है। और अब हमें बताना है कि प्रोसीजर कौन सा करेक्ट है। अब देखते हैं, आप बॉटम को हीट करेंगे या तो फिर टॉप को हीट करेंगे। हॉट एयर क्या करती है? हॉट एयर राइजेस, राइट? हॉट एयर राइज करती है। तो आपको जो ना बेसिकली क्या करना है, आपने टॉप सरफेस को हीट करना है, ठीक है? आपने टॉप सरफेस को हीट करना है। और कंक्लूजन हमारे पास क्या है? कंक्लूजन ये है कि एयर एक पुअर थर्मल कंडक्टर है। आपको पता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास मटेरियल होगा उतना बेटर वो एयर को कंडक्ट करेगा। ये बात तो आपको इससे भी पता होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वैक्यूम ग्लासेस होते हैं, उसमें एयर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत बुरा, वो बेसिकली हीट को रिपेल करता है। तो ना वो हीट को बाहर जाने देता है ना अंदर आने देता है। जो टेम्परेचर अंदर होता है वो उसको अंदर ही रखता है, ठीक है? सो ऑब्वियसली इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास होगा डी। Number 20. Okay, in a cold country, the ground is covered in snow. There is a pile of black sand outdoors, and its temperature is the same as that of the snow. A man sprinkles a thin layer of the sand over the snow. Why does the black sand help to melt the snow during the day? अब पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। हमारे पास ग्राउंड है, उसमें स्नो है, और बाहर हमारे पास ब्लैक सैंड है, और उसका और स्नो का टेम्परेचर सेम है। लेकिन अगर हमने सैंड को स्नो के ऊपर स्प्रिंकल किया तो वो स्नो मेल्ट हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होगा। ए, एनी थर्मल एनर्जी लेफ्ट इन द सैंड वो मेल्ट द स्नो। नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है कि थर्मल एनर्जी सैंड से स्नो में चले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। B, the black sand is a good absorber of the infrared radiation from the sun. That is correct. जैसे तो क्या होगा कि स्नो भी है और सैंड भी है, लेकिन क्योंकि सैंड ब्लैक है तो वो सन से ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और उस एनर्जी से वो गर्म होगा और उसके थ्रू स्नो मेल्ट करेगी, ठीक है? तो आंसर इसका है हमारे पास ट्रेनिंग का B. Number 21. A large hill blocks the direct path between the radio transmitter of radio waves and a receiver, as shown. The receiver picks up the signal from the transmitter even though the radio waves do not travel through the hill. The radio waves hill के through नहीं जा सकती, उसको उसके around जाना होगा. So which row is correct? A possible way for this to happen. अब बताएं, ये तो फिर डायफ्रैक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा अराउंड है। रिफ्रैक्शन अराउंड नहीं होता, रिफ्रैक्शन जब किसी चीज़ के थ्रू जा रहा होता है ना तो रिफ्रैक्शन होता है। तो ये सी या डी तो हो ही नहीं सकता, रिफ्रैक्शन हमारे पास होगा, डायफ्रैक्शन ही होगा। और अब हमसे पूछा हुआ है कि अ स्ट्रॉन्गर सिग्नल इज़ रिसीव्ड यूजिंग लॉन्गर वेवलेंथ। ये बात आपको पता होना चाहिए, लॉन्गर वेवलेंथ होती है तो स्ट्रॉन्गर सिग्नल रिसीव होता है। Number 22. A person stands 1 meter in front of a plane mirror. The mirror is moved away from the person at the speed of 1 meter per second. Which statement is correct? A, the image moves away from the person at a speed of 1 meter per second. मैं आपको पहले बताती हूँ, ये एक इमेज है, ये एक इंसान है, ठीक है, एंड इसका डिस्टेंस है मिरर से 1 मीटर। ये मिरर है। अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो ये इंसान है ना, इसका डिस्टेंस इस इंसान से 2 मीटर से दूर है। मिरर तो 1 मीटर दूर है, लेकिन मिरर के 1 मीटर दूर ये देखें जिसकी रिफ्लेक्शन है ना, ये यहाँ पर क्रिएट हो रही है बेसिकली 1 मीटर पर। समझ आ रही है आपको? जो इमेज क्रिएट हो रही है, वो उतनी ही डिस्टेंस पे क्रिएट हो रही है जितनी डिस्टेंस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज। तो बेसिकली ये जो इससे 2 मीटर्स की दूरी पे, ठीक है। और अगर हम बोल रहे हैं कि जो मिरर मूव किया जा रहा है वो उससे 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे दूर किया जा रहा है, दैट्स नॉट ट्रू।
वो उससे 2 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पर दूर किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है ना. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. अब अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो स्पीड भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. टाइम अगर कांस्टेंट है तो और डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो स्पीड भी इंक्रीज करेगी. तो क्योंकि देखा हमारे पास दो ऑप्शन है, मूव्स अवे एंड मूव्स टुवर्ड्स अ पर्सन. अगर हम मिरर को मूव अवे कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है मिरर इज मूव्ड अवे, तो ये तो दोनों तो हो नहीं सकता है, तो मूव अवे ही होगा फ्रॉम द. और स्पीड हमने बोला कि इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली मिरर की वजह से. तो आंसर यहाँ पर हमारे पास 22 का होगा बी. ठीक है. नेक्स्ट 23. White light is refracted and dispersed when it enters a glass prism from air. Which color has the lowest speed as it moves through the glass prism? Lowest speed का पूछा हुआ है. अब आपको ये बात तो ऑब्वियसली पता होनी चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है. दैट्स वायलेट. वायलेट की स्पीड लोवेस्ट होती है लेकिन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है. रेड की एनर्जी लोवेस्ट होती है लेकिन स्पीड हाईएस्ट होती है. ठीक है, रेड की बात करी थी. नंबर 24. द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब इसमें हमें बताना है कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ कर रही है. सॉरी, अब आपको पता है कि एक्स रेज सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इनमें और सबसे कम इनका होता है वेवलेंथ. ठीक है, एक्स रेज में वेवलेंथ सबसे कम होता है, मैक्स फ्रीक्वेंसी सबसे कम वेवलेंथ और सबसे ज़्यादा एनर्जी. फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से रिलेट करती हैं. और रेडियो वेव में सबसे कम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ. तो क्या चीज़ इंक्रीज़ कर रही है? वेवलेंथ. डी. Number 25. Which row gives a possible set of values for the speed of sound in ice, water and steam? आपको पता है speed of sound is a medium wave. मतलब कि वो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है. जितना ज़्यादा मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा इस वेव की स्पीड होगी. तो मटेरियल सबसे ज़्यादा किस में होता है? आइस में होता है, क्योंकि आइस सॉलिड है. फिर उसके बाद वाटर आता है, फिर स्टीम आता है. तो मैक्सिमम आइस में होगी और सबसे कम होगी स्टीम में. तो बेसिकली आंसर हमारे पास आएगा यहाँ पर डी. Number 26. A steel bar is placed in an east-west direction for it to be demagnetized. No other magnet is nearby. Which method is not suitable? पूछा हुआ not suitable. Hammering the method. Hammering करने से demagnetization होगी, तो no. Heating the bar to a very high temperature, even that will demagnetize it. Slowly taking the bar out of a coil that carries an alternating current, that will also demagnetize it. Slowly taking the bar out of a coil that carries a direct current. डायरेक्ट करंट के उससे अगर स्लोई निकालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मैग्नेटाइज्ड ही रहेगा. So this is incorrect, which is our actual correct answer. Number 27. A plastic rod is rubbed with a dry cloth. The rod becomes positively charged. Why has the rod become positively charged? It has lost electrons. आपको ये बात, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं. जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं वो मूव करता नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पे चीज़ें पॉजिटिवली चार्ज होती हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पे चीज़ें नेगेटिवली चार्ज होती है. सीधा इलेक्ट्रॉन्स या गेन होते हैं या लूज़ होते हैं और उससे चार्ज इफेक्ट होती है. प्रोटॉन्स ना गेन हो सकते हैं ना लूज़ हो सकते हैं, और न्यूट्रॉन्स गेन और लूज़ करने से चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता. Number 28. There is a current of 3 amperes in a resistor for time d. During time t, a charge of 120 coulombs flow through the resistor. What is the time? आपको ये formula पता होना चाहिए. Q is equals to I t, therefore t is equals to Q upon I. तो Q हमारे पास है 120 and I है हमारे पास 3. तो आंसर नंबर 28 का बन रहा है D, 40 seconds, क्योंकि टाइम का SI यूनिट है seconds. Number 29. Let me just put my marking scheme. Okay. Identical resistors are connected together to form arrangements X, Y and Z. आपको पता है कि रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में होती है वो इंक्रीज़ करती है और जब पैरेलल में होती है तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है.
What is the correct order of the resistances of the arrangement from the smallest to the largest? अब क्योंकि x पैरेलल में तो इसकी रेजिस्टेंस सबसे लो होगी, y और z में रेजिस्टेंस z की ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टर्स सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है R1 प्लस R2, ये है 1/R1 प्लस 1/R2। अब आप खुद ही देख लें, z की y से ज़्यादा है और y की x से ज़्यादा है, तो आंसर नंबर 29 का होगा डी, कि z की y से ज़्यादा है और y की x से ज़्यादा है। ठीक है, नंबर 13, resistors of resistance 1, 2 and 3 amperes are connected in parallel across terminals of a cell. Which statement is correct? अब अगर ये लोग पैरेलल में है ना, तो इन सब की वोल्टेज सेम होगी लेकिन करंट डिफरेंट होगा, तो A, the current in the resistors is equals incorrect. B, the sum of the currents in the 3 resistors is equal to the currents in the cell. That is correct, क्योंकि सेल का जो करंट है वो तीनों में डिवाइड कर रहा है, तो अगर उन तीनों का सम लें तो वो सेल के इक्वल ही होगा, तो आंसर नंबर 30 का है बी। नंबर 31, diagram 1 shows a circuit containing AC power supply, an unknown component X and a fixed resistor. The graph in diagram 2 shows how the potential difference across the resistor varies with time. ये कौन सी पोटेंशियल डिफरेंस है? ये आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में नहीं जा रही है, मतलब कि वोल्टेज नेगेटिव में नहीं जा रहा है, सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास सिर्फ डीसी करंट है, ये डीसी करंट है, मतलब करंट की फ़्लो की डायरेक्शन एक ही है, करंट की फ़्लो की डायरेक्शन ऊपर नीचे नहीं हो रही। और ये कौन सा कंपोनेंट ये करवाता है? डायोड। डायोड मेक्स श्योर ये हमारे पास यहाँ पे एसी सप्लाई है, मतलब कि करंट ये तो यूँ जा रहा है, फिर दूसरी साइकिल में यूँ जा रहा है। अब डायोड क्या करता है कि जो ये वाला यूँ करंट यूँ आ रहा है ना, इसको प्रिवेंट करता है आगे जाने से, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता। ये सिर्फ डायोड कर सकता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करें, ये सिर्फ डायोड का काम है, क्योंकि वो करंट की सिर्फ एक ही डायरेक्शन अलाउ करता है, वो है पॉजिटिव या फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट मूव करें। ठीक है, तो आंसर नंबर 31 का है सी। नंबर 32, an AND gate has 2 inputs and 1 output. Which truth table represents the action of an AND gate? तो बहुत आसान है, तो सबको आना चाहिए। ये टेबल्स तो आपको बेसिकली रटे में होना चाहिए, इसका आंसर बी है। आपको पता है कि AND गेट का अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 होगा, इनपुट 0 1 है या 1 0 है तो आउटपुट 0 होगा, और इनपुट 1 है दोनों का तो आउटपुट भी 1 होगा। This is just something that you should by heart at this point. Number 33, where must a fuse be connected in a mains electric circuit? अब आपको पता है कि फ्यूज़ क्या करता है? प्रिवेंट करता है कि अगर ज़्यादा हैवी करंट आ रहा है तो फर्दर अप्लायंस डैमेज ना हो, तो वो लाइव वायर पे ही लगाया जाएगा। अर्थ वायर पे करंट, वो अर्थ वायर होता है इमरजेंसी प्रिवेंट करने के लिए, और न्यूट्रल वायर होता है करंट को वापस से जाने में। लाइव वायर से ही करंट बेसिकली सप्लाई हो रहा होता है मेन उसको, तो उसको रोकना होगा, तो दैट्स बी। ओके, नंबर 34, a wire XY is connected to a resistor R. The wire is moved in electric field between 2 magnetic poles. In which direction must the wire be moved so that the induced current is in the direction shown? पहले तो हम अपने इस डायग्राम पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है हमारा जो हम चाह रहे हैं कि इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो। जब भी आप वर्ड इंड्यूस देखते हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि आप जो है वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और करंट इंड्यूस हो रहा है। इसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं राइट हैंड, इसके लिए हम हमेशा राइट हैंड यूज़ करते हैं। बेसिकली राइट हैंड को आप इस तरह ओपन करते हैं, यूँ परपेंडिकुलर में रखते हैं अपने 3 फिंगर्स को, आपकी मिडिल फिंगर, आपकी इंडेक्स फिंगर, आपका थंब। यूजुअली जब आपको करंट प्रोवाइडर होता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडर होती है तो आपकी फोर्स प्रोड्यूस होती है। जब फोर्स प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए आप अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे, लेकिन जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए आप अपना राइट हैंड यूज़ करेंगे। मतलब आप फोर्स खुद से दे रहे हैं और करंट वो आप प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दिस।
आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड को ओपन करना है इस तरह कि आपकी सारी फिंगर्स परपेंडिकुलर हो, आपकी 3 फिंगर्स, आपका थंब, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर। आपने अपनी जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो आपने अपनी मिडिल फिंगर को यूँ रखना है, मिडिल फिंगर, ठीक है। ये आपकी मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है। आपने अपनी इंडेक्स फिंगर को फिर यूँ रखना है, इंडेक्स फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपका जो थंब है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ, ये आपका थंब है। मतलब कि आपको वायर को इस डायरेक्शन में मूव करना है ताकि इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो, और थंब नीचे की तरफ हमारे पास आ रहा है बी। सो द आंसर फॉर नंबर 34 इज बी। नंबर 35, a step-up transformer produces a 40-volt alternating current output from a 12-volt input. There are 50 turns on the secondary coil. How many turns are there on the primary coil? अभी वालों को पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट और हमारे पास वोल्टेज और टर्न्स, ठीक है। तो आप इस तरह करेंगे कि 60, ठीक है, प्राइम मल्टीप्लाइड बाय एक्स gives us 12 multiplied by 50। तो अगर हम करें 12 multiplied by 50 डिवाइड बाय 60, आंसर आ रहा है हमारे पास 10। तो हमारे पास प्राइमरी कॉइल पे 10 टर्न्स होंगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको ये भी पता है कि V1 N1 is equals to V2 N2, ठीक है। Number 36, an AC generator contains a coil that rotates at a rate of 4,500 revolutions per minute. What is the frequency of the alternating current? तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछिए कि मतलब 1 सेकंड में कितना होता है, ठीक है। तो अगर 40,000 पर मिनट है तो हम करेंगे 4,500 पर मिनट है तो पर सेकंड कितना होगा, तो हम डिवाइड करेंगे बाय 60 से, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 75 हर्ट्ज़। तो 1 सेकंड में 75 रेवोल्यूशंस हो रहे होंगे। सो आंसर हमारे पास बी, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। नंबर 37, why are some radioactive resources stored inside boxes made from lead? लेड क्या करता है, लेड जितनी भी एमिशंस होती हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, लेड जो एमिशंस होती हैं, रेडियोएक्टिव एमिशंस होती हैं, उनको अब्जॉर्ब कर लेता है, उनको बाहर नहीं जाने देता, तो इस वजह से उनको इस बॉक्सेस में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 38, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल मतलब कि प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Which row identifies the type of particle in this diagram? अब इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि ऑर्बिट में होते हैं हमेशा। अगर इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो प्रोटॉन के हमारे पास 2 होंगे, तो दिफर ब्लैक वाले दीज आर प्रोटॉन्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है, और फिर ये हमारे पास ऑब्वियसली जो वाइट वाले होंगे ये न्यूट्रॉन होंगे। आंसर इज ए। नंबर 39, अथन मेसो, ये क्या हो गया, हाँ, a thin metal foil is placed in a vacuum. Alpha particles are fired at the foil and most go straight through. A very small proportion of alpha particles are deflected through large angles. What does this evidence provide for? Alpha particles हैं वो यहाँ पर हमें आ रहे हैं गोल्ड फॉइल पे, these are positive। और गोल्ड के जो हमारे पास एटम्स होते हैं उसका यहाँ पॉजिटिव हमारे पास न्यूट्रॉन होता है और नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो चीज़ डिफ्लेक्ट कर रही है लार्ज एंगल्स से, मतलब कि उसने किसी पॉजिटिव चीज़ को हिट किया है तभी तो वो डिफ्लेक्ट कर रही है। अगर नेगेटिव होता तो वो हिट करके थ्रू जाता, इस तरह से थ्रू जाता या यहाँ से थ्रू जाता, पॉजिटिव की वजह से ही वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा कि what does this provide for? That there is a tiny nucleus in each atom. न्यूक्लियस जो पॉजिटिव है उसकी वजह से ही अल्फ़ा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन होगी या रिफ्लेक्शन होगी या वो अपनी पाथ से हटेंगे, ठीक है।
बेसिकली क्या हो रहा है इसकी वजह से, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है बट यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इसकी वजह से इस पर रिपल्शन आ रही है, तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है इस तरह रिपल्शन की वजह से, ठीक है। नंबर 40, द बैकग्राउंड काउंट मेजर्ड बाय अ रेडिएशन काउंटर इज 40 काउंट्स पर मिनट. The counter close to radioactive source, the counter is reading 960 counts per minute. 960 काउंट्स है पर मिनट, बट वो रियल में होंगी 920 काउंट्स पर मिनट, क्योंकि 40 तो हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन है. तो हाफ लाइफ ऑफ द सोर्स इज 20 मिनट्स. व्हाट इज़ द काउंटर 1 आवर लेटर. 20 मिनट्स में कितने 1 आवर्स होते हैं हमारे पास. अगर हम 1 आवर है हमारे पास, उसमें 60 मिनट्स हैं, तो तीन दफ़ा 20 मिनट्स हो जाएंगे, तो 3 दफ़ा हाफ लाइफ होगी. तो 1 फिर 2 फिर 3. तो हम 920 को डिवाइड बाय 2 करेंगे पहले, फिर एक और दफ़ा डिवाइड बाय 2 करेंगे, बल्कि एक मिनट, 920 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ रहा है 460. अगर हम इसको वापस से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ रहा है 230. अगर हम इसको वापस से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ रहा है 115. ये 115 काउंट्स पर मिनट. लेकिन फिर हम इसमें क्या ऐड करना होगा, ये 40 काउंट्स ऐड करने होंगे. क्यों, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन. तो आंसर आ रहा है 155 एंड द आंसर दैट इज सी. ठीक है. I hope you all understood everything. If anybody doesn't understand anything, please mention down in the comments and I will try my best to get back to you. And I will see you guys for the next video, inshallah.